Welcome to Prasam Science Academy classes. Okay, and sorry. In this video, we are about to start set 4 of year 2024, and we are going to solve the physics part for this. So this is set 4, first subset of set 4, and that is of year 2024. Okay, our first question says that the absolute refractive index of glass and water is 3 by 2 and 4 by 3. So now, what is absolute refractive index? So absolute refractive index of any medium, here the mediums are glass and water. So किसी भी मीडियम का absolute refractive index होता है speed of light और उस मीडियम में light की speed. So speed of light divided by speed of light in air or vacuum, which is denoted by c divided by the speed of light in that medium. That is the absolute refractive index. तो यहाँ पे पहला मीडियम जो है ग्लास, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ऐसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर जो है, अब मीडियम आपका वाटर है, यहाँ मीडियम वाटर है, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विच इज नोटेड बाय सी. अब सी आपको पता है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. और c जो होता है, c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन. स्पीड ऑफ the absolute effective of water is speed of ratio of speed of light in air and water divided by the speed of light in water. अब इनमें हम डालते हैं इनकी वैल्यूज. ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2. सो दिस इज 3/2 is equal to c upon speed of light in glass. So speed of light in glass is denoted by vg. ये है speed of light in glass और ये दे रखी है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So 2 into 10⁸ meter per second. Now here the absolute refractive index of water is 4 by 3. So this is 4 by 3 c. And speed of light in water we have to find out. We have to find out speed of light in water. So let this be equation 1 and let this be equation 2. I am going to divide these two equations. और इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड से. Okay, so this now becomes 3/2. ये हो जाएगा 3/2 into 3/4. This is c upon 2 into 10⁸ into speed of light in water upon c gets cancelled. This is now 9/8 and speed of light in water upon speed of light in glass. So speed of light in water is equal to, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 2 4 is 8. So this is speed of light in water is 9/4 into 10⁸ meter per second. Now 9/4 is 4 2s are is 8, 4 1s are 4 2s are is 8 and then 10. So 9/4 we have to divide 9/4. So this is 4 2s are 8, 10.28 and then 20. So it's 2.25. So this is 2.25 into 10⁸ meter per second, but this is not the given option. Let's see if this is the given option or not. So 9/4 into 10⁸, that is A, is the correct answer for this one. Okay, next question में पूछा है when a beam of white light passes through a region having very fine dust particles. जो very fine dust particles हैं वो scattering of light phenomena से scatter करेंगे light of shorter wavelength और वो है आपकी blue. So answer for this is blue, which is C. For question number 13, we have to consider the following combination of resistors. क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कंसिडर करने पे द कॉम्बिनेशंस हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम किसकी है. सो पहले ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है इसमें रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में
तो इनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये फर्स्ट वाले की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो reciprocal of the resistance in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances connected in parallel. So this is 2 by 2, which is equal to 1 ohm. So ये जो 1 ohm है. Now let's consider the second circuit. यहाँ पे भी सभी resistors parallel में है, तो इनकी जो resistance है वो हो जाएगी 1/3 plus 1/3 plus 1/3, which is equal to 3/3 is equal to 1 ohm, और 1 ohm का 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, तो यहाँ पे भी 1 ohm है. ओके, थर्ड में ये दो कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 6 ohm. ये दो कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये भी 6 ohm. तो हमारा जो सर्किट जो है वो अब कुछ ऐसा बन जाएगा. ओके, अब ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, जो कि पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/RP हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, विच इज 2/6 इज इक्वल टू 1/3 ओम, और आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 3 ओम, तो ये तो 1 ओम नहीं है. लास्ट वन है फोर्थ वन. यहाँ पे दो रेजिस्टर्स फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दिस इज 1/RP is equal to 1/0.5 plus 1/0.5, which is 10 by 5, 10 by 5. So this is 2 plus 2, which is equal to 4 ohm. और रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगी 1/4, विच इज 0.25 ओम. तो ये तो इक्वल टू 1 नहीं है, ये भी इक्वल टू 1 नहीं है, और इक्वल टू 1 है ये दो. सो 1 and 2, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स में पूछा है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm draws a current of 5 ampere, he developed in iron in 30 seconds. सो रेजिस्टेंस मींस हमें दिया है जो कि है 20 ohm, करंट दिया है 5 एम्पियर, और टाइम दिया है आपको 30 सेकेंड्स, और हमसे पूछा है द हीट डेवलप्ड. सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट डेवलप्ड होता है आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इनमें वैल्यू डालेंगे. करंट की वैल्यू है 5 स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 20 ओम, टाइम है 30 सेकेंड्स, तो 25 इंटू 20 इंटू 30 is 1600, 6 5 are is 30, 6 2 are 12, 15. So this is 15,000 joule is the heat developed, and which is option A. So option A is the correct one. Option A इसका आंसर है 15,000 joule. For question number 15, it's given that a rectangular loop ABCD, this is a rectangular loop ABCD, और इसमें जा रहा है करंट I, और इसको रखता है एक कंडक्टर XY के पास जिसमें भी है करंट XY, such that conductor is parallel. this XY कंडक्टर जो है ये इस जो लूप है इसकी साइड AB को पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, एंड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप, और ये इसके प्लेन में है. इफ ए स्टेडी करंट I is established in the conductor, अगर इसमें एक स्टेडी करंट है तो कंडक्टर एक्स वाई जो है ये कंडक्टर क्या यही रहेगा, रिमेन स्टेशनरी, और क्या ये साइड ए बी ऑफ द लूप की तरफ मूव करेगा, या साइड ए बी से दूर जाएगा, या अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा. ओके, तो वी हैव स्टडीड दैट फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. और क्योंकि करंट ऊपर को जा रहा है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो इधर को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगे उधर को रहेंगे. सिमिलरली जो ये पार्ट है ये वाला ए बी, जो ए बी पोर्शन है इस लूप का, वो भी उसमें भी करंट की डायरेक्शन ऊपर को ही है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगी, पैटर्न जो होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा, और इनमें डायरेक्शन भी सेम रहेगी. सो इस एक्स वाई कंडक्टर में, और ये जो ए बी जो है, जो साइड है लूप की,
दोनों में करंट की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होंगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो करंट और इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज in this direction in which I have made the arrows pointing. तो ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह को घूम रही है, इस तरफ को। सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। और जब भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम है, उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होएगी, तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस ये जो करंट एक्स वाई है, सॉरी ये जो कंडक्टर एक्स वाई है, ये अब मूव करेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे विल मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी ऑफ द लूप, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, एंड नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी ऑफ द लूप, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। So because the current are in the same direction, which means the magnetic field will be in the same directions, and this results in attractive force between them. So conductor XY will move towards the side AB of the loop. So that means our option correct answer for this is option B. The next question, that is assertion in the reason based question, it's given that magnetic field lines never intersect each other, which is true. And they never intersect each other because if they do so, then at the point of intersection the compass needle will point two directions, which is not possible. So this is also true, and this is the reason R is the correct explanation of assertion A. Let me explain you how. So let's say this is the बार मैग्नेट, मान लो ये एक बार मैग्नेट है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व्स में निकलती है ऐसे, दे इमर्ज फ्रॉम वन पोल, एक पोल से निकलेंगे और दूसरे पोल में इमर्ज करेंगे, इमर्ज फ्रॉम वन पोल, and so they emerge from the pole that from where they emerges is a north pole, और जहाँ पे ये merge करेंगी वो बन जाएगा आपका साउथ पोल। और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो है अगर वहाँ पे हम टेंजेंट बनाए दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेट्स सपोज ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बन जाएगी ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी पॉइंट पे बन जाएगी ये। तो कॉम्पास निडल हमें दो डायरेक्शन देंगी एक ही पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल। So magnetic field lines never intersect because at any given point the magnetic field has only one direction. If we draw a tangent, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन रहती है, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, which is impossible. So reason R technically explains assertion A. So that means if we have to choose out of these four options, so both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. So A is the correct answer for this one. For next question, is given that person suffering from presbyopia needs bifocal lenses. तो एक person को presbyopia है, that is neither he can see the nearby objects nor the distant, और उसे चाहिए ये सब देखने के लिए he needs two lenses of power -4 diopter and 2 diopter. So which one of two lenses is used for the correction of distant vision and what is its focal length? तो हमारे पास हैं दो लेंस, एक की पावर है -4D और एक की पावर है 2D, और पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये बन जाएगा -4, और फोकल लेंथ आपका बन जाएगा -1/4, जो कि हो जाएगा -0.25 मीटर, और यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर नेगेटिव। ये फोकल लेंथ नेगेटिव है, और नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कनकेव की। सो यहाँ पे ये नेगेटिव फोकल लेंथ, सो दिस इज ए कनकेव लेंस जिसकी पावर -4D है। ये है आपका कनकेव लेंस।
और ये दूसरा जिसकी पावर +4d है, यहाँ पे 1/f हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 1/2 विच इज 0.5 मीटर, और ये f हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सो इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और हमें पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कनकेव लेंस की, कन्वेक्स लेंस की, तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस। ओके, अब कनकेव लेंस यूज होता है, it is used for the correction of myopia. मायोपिया का मतलब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, पास के देख सकते हैं, जिसे नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा लेंस यूज करेंगे फॉर द करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन। सो this concave lens is used for concave lens, that is the lens with power, negative power is used for the correction. So concave lens, that is lens with power -4d is used for correction of distant vision. और इसमें आपसे फोकल लेंथ भी पूछी गई थी, so I have already got the focal length for concave lens. So हमारा आंसर रहेगा इसके लिए, which one of the two lenses? The first one would be used for the correction of myopia, because convex lens, that is lens with negative power, is used for the correction of distant vision, क्योंकि myopia होता है near sightedness, that is he is not able to see distant objects, और उसकी focal length है -25 सेंटीमीटर। Okay, for question number 26, two wires A and B of same material having same lengths and diameters 0.2 mm and 0.3 mm respectively, दोनों की लेंथ सेम है लेकिन डायमीटर दोनों के अलग अलग हैं, आर कनेक्टेड वन बाय वन इन ए सर्किट, so which one of these two wires will offer more resistance to the flow of current in the circuit? We have to justify our answer. ओके, हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर होती है रो इनटू एल बाय ए, जहाँ रो होती है रेजिस्टिविटी। सो क्योंकि वायर सेम मटेरियल की है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, एल होती है लेंथ ऑफ वायर, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर की शेप होती है सिलिंड्रिकल। सो दिस इज द शेप ऑफ द वायर विच इज सिलिंड्रिकल, और ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज पाई आर स्क्वायर, सो ए इज पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली जिसकी डायमीटर ज़्यादा होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली फ्लो कर जाएंगे, तो वायर विद डायमीटर 0.3 mm will have less resistance as compared to the wire with diameter 0.2 mm. So 0.2 mm diameter वाली wire जो है वो ज़्यादा resistance offer करेगी to the flow of current, because R is inversely proportional to the area of cross section. So resistance is inversely proportional to area of cross section means that अगर area of cross section ज़्यादा है तो resistance कम है, और अगर area of cross section कम है तो resistance ज़्यादा है, जो कि पहली वाली वायर के केस में होगा। क्यों? We have to justify your answer, so let's justify this. Okay. अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब निकालते हैं वायर ए के लिए। सो फॉर वायर ए हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। सो वायर ए की जो डायमीटर है वो है 0.2 mm, सो वायर ए की जो डायमीटर है वो है 0.2 mm, और इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगी, लेट्स लेट्स जस्ट सिंपली कीप इट इन mm, हम इसे मिलीमीटर में भी रख सकते हैं, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, that would be 0.2 into 10 raised power -3 meter.
अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा दिस इज b square. So this is pi into 0.2 square is 0.04 into 10 raised power minus 6 by 4, which is 0.01. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वायर ए का, ये वायर ए है, तो वायर ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻6 पाई मीटर स्क्वायर। ओके, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/100 इंटू 10⁻⁻6 पाई मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻8 पाई मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं वायर बी, और वायर बी का जो डायमीटर है दैट इज 0.3 mm। तो वायर बी का जो डायमीटर है वो है 0.3 mm, और 0.3 mm हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू pi d square by 4. So this is pi d square by 4, and diameter is 0.3 into 10⁻³ square by 4. So this is now pi 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09 into 10⁻⁻6 by 4. Sorry, so this is now pi into, this becomes 9/400 into 10⁻⁻6 meter square. Sorry. So 9/4 is 2.25 into 10⁻⁻4. This is pi meter square. ओके, यहाँ पे ये है 10⁻⁻8 पाई मीटर स्क्वायर, सो ये है 2.25 इंटू 10⁻⁻4। सो ऑब्वियसली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वायर बी का ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बी का ए से ज़्यादा है, और जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रेजिस्टेंस ऑफ बी जो हो जाएगी वो रेजिस्टेंस ऑफ ए से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए ज़्यादा है। So resistance of A is greater than resistance of B. So we can say that wire A has a smaller diameter and hence smaller cross section area. So therefore wire A will offer more resistance to flow of current. Then next question, which is a theoretical based question, और इस क्वेश्चन पूछा है पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है हमारा आई लेंस जो है अपने आप ही फोकल लेंथ को एडजस्ट करके पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स एक पे फोकस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन।
सो ये एक एबिलिटी है आई लेंस की, टू एडजस्ट इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को देख सके, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट इसमें पूछा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो इमेज डिस्टेंस आई पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इमेज की डिस्टेंस जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी जब हम आई, ये आपका आई बॉल है और इमेज आपकी बनती है रेटिना पे। तो आपकी इमेज डिस्टेंस जो है ये है रेटिना। ओके। फिर मान लिया जाए कि ये एक आई बॉल है और इमेज बनती है रेटिना पे। तो इमेज डिस्टेंस जो है लेंस से जो इमेज की डिस्टेंस है वो है ये। तो ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसके दूर या पास आने से क्या ये इमेज डिस्टेंस जो है ये पास या दूर होएगी? नहीं, क्योंकि इमेज हमेशा बनती है रेटिना पे। So when the distance of an object from the eye increases, the image distance in the eye remains constant, क्योंकि इमेज हमेशा बनती है रेटिना के ऊपर। और कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो इस पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली लेंस तो एडजस्ट, फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा ही, बट जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है सिलेरी मसल्स, क्योंकि सिलेरी मसल्स इस लेंस को पकड़े रहती है, दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन। और जब ये इसको खींचेंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये लेंस हो जाएगा थिन। थिन होने से सिलियरी मसल्स जो हो जाएगा, जो सिलियरी मसल्स जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी या सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये लेंस हो जाएगा थिक। थिक होने से इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और हम देख सकेंगे पास के ऑब्जेक्ट्स। और जब इस सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी, जब पीछे को खींचेंगी, तो सिलेरी मसल जब रिलैक्स होंगी तो लेंस बन जाएगा थिन, पतला हो जाएगा, उससे इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और हम देख सकेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सो पार्ट रिस्पॉन्सिबल आर ciliary muscles. These is how exactly you have to write the answer in this case. Okay, for next question में ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट फिक्सेस a sheet of white paper on drawing board। कि एक स्टूडेंट ने एक ड्राइंग बोर्ड पे वाइट पेपर फिक्स करी है, ही प्लेसेस ए बार मैग्नेट, और बीच में रख दिया बार मैग्नेट, एंड ही स्प्रिंकल्स सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। और उसने उस बार मैग्नेट के अराउंड कुछ आयरन फिलिंग्स जो हैं वो उस पे डाल दिए हैं, मतलब आयरन का आप समझ सकते हो पाउडर या चूरा। देन ही टैप्स द ड्राइंग बोर्ड जेंटली, फिर उसने ड्राइंग बोर्ड पे धीरे धीरे ही टैप्स देम विद हेल्प विद फिंगर्स एंड ऑब्जर्व दैट। और इसमें फिर उसने ऑब्जर्व किया कि आयरन फिलिंग्स जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। सो व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न? ये आयरन फिलिंग्स क्यों अरेंज करेंगे? इसका आंसर ये है क्यों, बिकॉज दे अलाइन। वो जो पैटर्न जो होगा वो वैसा ही होगा जैसे कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है। क्यों? क्योंकि हर एक आयरन फिलिंग होती है एक छोटी सी मैग्नेट, और बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इनके ऊपर लगती है फोर्स, और फिर वो एक स्पेसिफिक वे में अपने आप को अलाइन कर लेती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो मान लो ये आपकी बार मैग्नेट है, तो जो भी आयरन के फिलिंग्स आप इसके ऊपर फेंकोगे वो अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज करेंगी, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में, इस तरह से, इस तरह से। तो आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को इस पैटर्न में इमर्ज करेंगी, और जहां से ये निकलेंगी, इमर्ज होंगी, वो होगा नॉर्थ पोल, और जहाँ पे मर्ज होंगी वो हो जाएगा साउथ पोल। तो इस तरह से बार मैग्नेट में होता है, तो आयरन फिलिंग्स भी अपने आप को इसी तरह, इसी पैटर्न में अरेंज करेंगी। सो ये था फर्स्ट का आंसर। फॉर सेकंड, सेकंड ने पूछा है कि क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स जो है एंड्स ऑफ द मैग्नेट पे ज्यादा क्यों होती है, यहाँ पे क्यों है क्राउडिंग, यहाँ पे ज्यादा क्यों है? क्राउडिंग मीन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ज्यादा पास पास है एज कम्पेयर टू दिस रीजन। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड रहेंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। तो इस क्राउडिंग जो आयरन फिलिंग्स एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रांग है।
और ये बन जाते हैं आपके पोल्स। तो पोल्स वो रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड रहती है। तो ये डेंसर, आप बोल सकते हो कि ये डेंसर भी होती है। तो इसीलिए आप जब भी देखोगे कि कोई भी आयरन, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, जब ये बार मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी तो वो पोल की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है। तो ये इस यहाँ पे इनका क्लस्टर बन जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, व्हाई डू द लाइंस अलोंग द आयरन आयरन फिलिंग लाइंस इंडिकेट। ये जो लाइंस हैं, इनका मतलब क्या है? ये जो लाइंस हैं ये बन जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट की। और जो ये लाइंस इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। तो ये इंडिकेट करती हैं इनकी डायरेक्शन अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। और आप देखोगे कि जो फील्ड लाइंस हैं ये ऑरिजिनेट, जहाँ से ये ऑरिजिनेट करती हैं, जहाँ से इमर्ज होती हैं। तो एक वर्ड है इमर्ज और एक वर्ड है मर्ज। जहाँ से निकलती हैं वो बनेगा नॉर्थ पोल, और जहाँ मर्ज होती है, जहाँ अंदर को जाती है, वो बन जाएगा साउथ। सो और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइंस इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लो और वहां पे आप बनाओ एक टेंजेंट, तो वो आपको डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस। तो ये जो फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट करती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल से, और इनके बनते हैं क्लोज लूप्स। तो ये बन रहे हैं क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप्स ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्टूडेंट प्लेसेस ए कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन ए करंट कैरिंग सोलोनॉइड। अब इसने ये जो कई कार्डबोर्ड जो था एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड में हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, करंट कैरिंग सोलोनॉइड के अंदर, और फिर ये एक्टिविटी को रिपीट किया, तो किस पैटर्न में आयरन फील्ड्स अरेंज करेंगी, और कंक्लूजन ड्रॉन क्या है मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन द अबव बेस्ड पैटर्न। तो इस केस में भी जब स्टूडेंट प्लेस करेगा कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, आर्निंग फीलिंग्स अलाइंड इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो द सोलेनॉइड जो होता है इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसको हम रैप करते हैं क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। तो कंपैरेटिवली इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी रेडियस बहुत छोटी है। अब इसमें भी जब आप करंट पास करोगे, so when you connect it, let's say to the battery, और इसमें आप जब करंट पास करते हो तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप जो होगी वो भी एग्जैक्टली exactly वैसी ही होगी जैसे कि बार मैग्नेट के अराउंड होती है। मतलब एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और दूसरे एंड पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, ये बिल्कुल पैरेलल रहेंगी बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेंगी वो बिल्कुल पैरेलल रहेंगी अंदर। तो ये भी वैसे ही क्लोज लूप्स ही बनाएंगे इस तरह से। तो एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी जो कि बन जाएगा नॉर्थ पोल, और एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज हो जाएंगी जो कि बन जाएगा आपका साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। तो आपसे पूछा है, the question says, what is the conclusion drawn about the magnetic field based on the above pattern of the lines। तो ये जो पैटर्न ऑफ लाइंस जो बनेंगी, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि सोलोनाइड के अंदर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अरेंज करेंगी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में। अंदर जो आयरन फिलिंग्स है इसके अराउंड है एक कार्डबोर्ड जो कि इसके अंदर से जा रहा है। तो इसके अंदर जो आयरन फिलिंग्स है वो बन जाएंगी पैटर्न, एक पैरेलल सेट ऑफ एरोज का, जो इंडिकेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जबकि सोलेनॉइड के बाहर यहाँ जो होंगी, यहाँ जो आपके जो आयरन की जो फिलिंग्स हैं दैट विल अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड पैटर्न्स, जैसा कि बार मैग्नेट में। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी जैसे कि बार मैग्नेट में बनती है। इनसाइड आयरन फीलिंग्स होंगी स्ट्रेट लाइन में, और आउटसाइड जो सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो कर्व्ड पैटर्न्स बनाएंगी। So this is how exactly you have to write the answer. Let's move on to the next question. ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में इमेज डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वेरिएशन दी है टेबुलर फॉर्म में और कन्वेक्स लेंस के लिए। इसको आप एनालाइज करो और यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
ओके, कन्वेक्स लेंस में हमें ये पता है कि जब जब आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है जब जब फोकल लेंथ से बड़ी रहेगी तब तक आपकी आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ से कम हो जाएगी और वहां आपको मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो विदाउट कैलकुलेशन हमें फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हम इस ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करेंगे। इस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपकी -30। माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने है, और v जो है वो आपकी 50 है, और प्लस मीन्स प्लस का साइन मतलब ये लेंस के दूसरी तरफ बनी है, इस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं। so we can say that behind the lens, तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट में है और इमेज जो है दूसरी तरफ बनी है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दोनों सेम है, सॉरी ये 50 है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, और हमें पता है कन्वेक्स लेंस के केस में, मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, इस केस में हम बनाते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है f। ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ इसकी डिस्टेंस हो जाएगी डबल, मतलब डबल द फोकल लेंथ। और ये है आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसे F2 या 2F2 भी बोल सकते हैं। सो इसे F1 और 2F1 मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे है, और जो इमेज जो बनेगी वो भी आपकी सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे ही बनेगी। ये रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी फोकस में से, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे करके, तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी। ये इमेज जो है इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो भी 2f है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो भी 2f है, और यहाँ पे दोनों सेम है 50-50। इसका मतलब है आपकी जो इमेज मतलब ये जो है इमेज बनी है आपकी ट्वाइस द फोकल लेंथ पे। ट्वाइस द फोकल लेंथ है 50, और एफ हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये है फोकल लेंथ विदाउट द कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट में पूछा है विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, वाई, कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है और क्यों। तो हमें पता है जब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा रहेगी, जब जब ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस फोकल लेंथ से ज़्यादा रहेगी, तब तब आपको मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हो जाएगी तो आपको मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो यहाँ पे एक केस ऐसा है ये वाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ से ज़्यादा है। सो सेकेंड केस, so second case में if we consider this case, so sorry, not this one, uh, this is not the case, ये वाला केस, यहाँ पे u, यहाँ पे u है आपका -15, माइनस मतलब इन फ्रंट ऑफ द इमेज, और ये है फोकल लेंथ से कम, फोकल लेंथ पे 25 सेंटीमीटर से कम है ये। तो ये फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब जो इमेज जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, जबकि ये जो है 35 सेंटीमीटर का मतलब है इमेज बनी है लेंस के इस तरफ। तो आपकी इमेज यहाँ कहीं बनी है 35 सेंटीमीटर पे, यहाँ यहाँ बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपकी जो इमेज है इस केस में बनी है रियल एंड इन्वर्टेड, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब रियल और इन्वर्टेड इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, और जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो 37.5 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें लिखोगे ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो करेक्ट है, बिकॉज क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर ए कन्वेक्स लेंस, व्हेन object is placed at a distance smaller than focal length,
स्मॉलर देन फोकल लेंथ का मतलब है यू जो है वो आपका फोकल लेंथ से कम है। तो इमेज शुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज होनी चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इस केस में हाउएवर इन दिस केस हियर आप लिख सकते हो क्यों इनकरेक्ट है, हाउएवर वी इज 37.5 और वो भी प्लस। सो 37.5 सेंटीमीटर का मतलब है V is 37.5 centimeter, which indicates or which shows that image is real and inverted. और ये बिल्कुल कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, which contradicts the property of convex lens. Yes. इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन जो है इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है if so this question further says that draw a ray diagram to find the position of the image formed for this position of the object। तो आपको एक रे डायग्राम बनाना है। सो रे डायग्राम जो है उसका कुछ इस तरह से बनेगा। हम बनाते हैं कन्वेक्स लेंस, लेट दिस बी अ कन्वेक्स लेंस, ये बन गया कन्वेक्स लेंस। और ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमें रखना है, लेट दिस बी द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस बी द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट जो है वो यू के डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम रखनी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रहता है यहाँ पे। और इमेज जो बनेगी वो बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इमेज हम बनाएंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इन दिस केस। सो एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं that goes parallel to the principal axis। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पास करेगी प्रिंसिपल फोकस में से। तो हम ये डायरेक्शन भी बनाएंगे। ओके, एक रे ऑफ लाइट और लेते हैं जो इसको पीछे हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, वो हम ले लेते हैं दैट इट गोज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। एक रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ऐसे। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू intersect them by producing these rays backwards। इनको हम पीछे की तरफ खींचेंगे। so ये आपका एरो है। so produce them backward and these rays of light will intersect somewhere here। so ये 2f के पीछे जो है वो आपकी इमेज बनेगी। यहाँ पे लेट्स से ये आपकी इमेज, और इस केस में हम इसको इरेक्ट बताएंगे, एरो ऊपर को बताएंगे। ये बन गया आपकी इमेज ए डैश बी डैश, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। तो ये थी करेक्ट formation or the ray diagram for when the object is placed between distance less than the focal length। okay, आप इसमें स्ट्रेट लाइंस यूज कर सकते हैं। आई हैव जस्ट यूज द फ्री हैंड डायग्राम, मैंने एक फ्री हैंड डायग्राम बनाया। यू कैन यूज द स्ट्रेट लाइंस इन दिस केस। कि आगे इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या दिया है। सो फर्दर इट सेज find the approximate value of magnification for u is equal to -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर के लिए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी मैग्निफिकेशन की, u जो है वो आपका -30 सेंटीमीटर है। तो u आपका -30 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है v/u। और लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो रहती है v/u। और -30 सेंटीमीटर पे अगर हम टेबल देखें तो टेबल में 30 सेंटीमीटर के लिए v है 1। तो here the v is 150। So magnification will be 150 by
minus 30, which gives me negative 5. Negative means the image is inverted, and 5 means that it's 5 times the size of the object. So image is 5 times, then so we can say right here the image is 5 times the size of object, and negative sign indicates that it's inverted. Negative sign indicates that it is inverted. Okay. So I think we have answered all the parts of this question. This question seems to be important one. Okay, next question is question number 36, part B, and we have to define the principal axis. So principal axis is a straight line passing through the optical center and the center of curvature of two surfaces. So this is the principal axis of the which lens it is. It's we are talking about a concave lens, so whether it's a concave or the convex, still passes through the optical center. So if this is a concave lens, let this be the optical center, and it's a straight line that passes through the optical center and the center of curvature of two surfaces. So the center of curvature would be here. Let this be the center of curvature, and so let this be the principal focus, and this be twice the lens. This is the center of curvature. Okay. Now, so this is the principal axis. Now, next question says that we have to draw a ray diagram to show what happens when a ray of light parallel to the principal axis of concave lens passes through it. So, the ray of light which goes parallel to the principal axis will appear to be coming from the principal focus. So, you can draw any two of these. Okay, this is the ray of light coming parallel to the principal axis. It goes like this after refraction, but to us, it seems that it's coming from the principal focus. So we have to draw this dotted. So this is the ray diagram for the ray of light parallel to the principal axis of a concave lens. Next question is, the focal length of a concave lens is 20 centimeters. So this was the ray diagram. Next is given that the focal length of a concave lens. So if you use the sign convention, it's negative and it's 20. So f is equal to negative 20 centimeter. At what distance from the lens should a 5 centimeter tall object? So this is the height of the object, 5 centimeter, be placed so that its image is formed at a distance 15 centimeter from the lens. So image is formed 15 centimeter from the lens. Okay. So what are we supposed to find out? We are supposed to find out so at what distance from the lens should the object be placed? So that means we have to find out u and also calculate the size of the image formed, and we have to find out h dash, that is the size of the image. Okay, so let's use the lens formula after we have applied the sign conventions. Okay, and in this case v, now the image formed in case of a concave lens is always on the same side as the object is. So uh, here V is 15 centimeter. So it's given that image is formed at a distance of 15 centimeter from the lens. So V is 15 centimeter. And because it's formed on the same side of the lens, because for a convex concave mirror image is formed
always on the same side where the object is, and this distance is negative, so this is negative. Okay, now we use the lens formula. So for lens formula, it's 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 by F. Right. So it's 1 upon negative 15 minus 1 upon U is equal to 1 by F is negative 20. So I can write it as negative 1 by 15, negative 1 by U is equal to negative 1 by 20, which gives me negative 1 by U is equal to negative 1 by 20 plus 1 by 15. Now LCM of 20 and 50 is 60. So this is negative 3 plus 4, which gives me 1 by 60. So U is equal to negative 60 centimeter. So this is the object distance. And now we have to calculate the size of the image formed. So let's use, we know that magnification is given by M is equal to V by U upon H dash by H. So let's use this combination. Okay, let's use this combination. So V is negative 15. So negative 15 by negative 60 is equal to H dash. We have to find H. Size of the object was 5 centimeters. So this is 5 centimeter. This gets cancelled. 15 fours, that is 60. So 4 into H dash. H dash is the size of the image. H dash is equal to 5 by 4, which gives me 4 1 that 4 2 5. So this is 1.25 centimeter. Now the image formed is 1.25 centimeter. That means that size of the image is 1.25 centimeter, but the object was 5 centimeters. So this image object here was 5 centimeter, and the image is 1.25 centimeters. So that's a diminished image. Okay, now let's see if we are left with something else. So calculate the size of the image formed. We have calculated the size of the image formed with this. We are done with this part. Let's move on to the next one. Okay, for last question जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 है. We have to study the following circuit. और इस circuit पे on the base of this circuit we have to answer the following questions. We have to find the total resistance between points A and B. This is the first part. So this is the total resistance between A and B, and these are connected in series. So let's write down the answer for this. And we have to write that between points A and B, the resistors are connected in series. So let me write it down. Between points A and B, the resistors are 4 ohm, 6 ohm, and 16 ohm. These are connected in series. Okay, and we know that resistance in series is given by R1 plus R2 plus R3. तो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हम डिनोट कर लेते हैं ए बी. हम लिखते हैं रेजिस्टेंस ए बी, और वो हो जाएगी 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम. 4 plus 6 is 10 plus 6 is 26 ohm. तो ये है रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. Let's move on to the next part. Find the distance between the points B and C. B और C के बीच में आपकी जो resistors हैं वो connected हैं parallel में. ये है B और C. Now these resistors are connected in parallel, so we have to write that between points B and C, these resistors are 8 and 8. 8 ohm and 8 ohm are connected in parallel. और हमें पता है, we know that the reciprocal
of the resistance, equal resistance of the resistor connected in parallel is the sum of the reciprocal of the individual resistances. तो इसको हम डिनोट करते हैं BC से, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 विच इज 2/8 विच इज 1/4 और 1/4 ओम को आप लिख सकते हो 0.25 ओम. Okay, moving on to C part, we have to calculate the current drawn from the battery when the key is closed. Okay, current drawn from the battery जब key closed है means we have to find the total current in the circuit और total current का मतलब है हमें चाहिए total resistance. तो resistance total जो हो जाएगी, अब हमारे पास सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से है. ये रेजिस्टेंस है A और B के बीच में जो थी RA और आपका सर्किट अब बन चुका है, ये है A और B और B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस थी पैरेलल में, ये है C, वो थी RBC और REB और RBC जो है वो कनेक्टेड है सीरीज में. तो रेजिस्टेंस टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी RAB प्लस RBC जो कि है 26 प्लस 1/4. सो 26 प्लस 0.25 हो जाएगा 26.25 जो यह है रेजिस्टेंस टोटल. तो रेजिस्टेंस टोटल है 2.5. ओके, यहाँ एक गड़बड़ है. गड़बड़ ये है कि यहाँ हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, इट्स नॉट 2 पॉइंट. तो यहाँ पे आर बी सी जो है वो 4 ओम है. सॉरी फॉर दैट, ये आर बी सी 4 ओम है. तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा 4 ओम. तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी 30 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की 30 ओम और ये है 30. Now we have to find the current drawn from the battery. So resistance जो टोटल है वो है 30 ओम. जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है क्रॉस बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है वो है 6 ओम. तो ये है 6 ओम और यहाँ लगाएंगे हम ओम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR और I हो जाएगा V/R. तो ये आएगा 6/30, ये हो जाएगा 1/5 एम्पियर. तो आपका करंट हो जाएगा 0.2 एम्पियर. So the current in the circuit, the total current in the circuit is 0.2 ampere. That is drawn from the battery, current drawn from the battery. Okay, आगे देखते हैं. इसमें और पार्ट जो है इन दोनों में से एक करना है. तो इन द अबव सर्किट द 16 रजिस्टर ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स 8 ओम. 16 ओम रजिस्टर या जो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 8 ओम दो रजिस्टर्स की, which one of the two will have more potential difference across its ends? We have to justify your answer. तो इन दोनों के क्रॉस, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है और इन दोनों के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो उन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें जो करंट जाएगा, क्योंकि ये आपके सीरीज में है तो इसमें करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना कि सर्किट में है, वो है 0.2 एम्पियर. तो हम निकाल लेते हैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 16 ओम. तो यहाँ हम लिखेंगे, ये भी और पार्ट है, यहाँ लिखेंगे फॉर 16 ओम रजिस्टर. 16 ओम रजिस्टर के लिए करंट जो है वो 0.2 ही रहेगा. इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 16 ओम है. तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर. तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी वो हो जाएगी 16 टू 32. तो ये हो जाएगा आपका 3.2 वोल्ट. 3.2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है 16 ओम रजिस्टर के क्रॉस. ओके, अब हम निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ओम के लिए. तो और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 8 ओम की, उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो है 4. अब इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है. इसके अक्रॉस इनमें जो करंट जाएगा वो क्या होएगा, जो दोनों में जो करंट जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है और करंट जाएगा दोनों में.
मतलब टोटल करंट जो दोनों में जाएगा वो आएगा 0.8। हमें ये नहीं बोला है कि किसी एक के क्रॉस निकाल, हमें ये बोला है कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों में जो करंट जाएगा वो यहाँ से जाएगा, इधर से। हमने एक नहीं लेना है, तो दोनों में जो करंट जाएगा वो आई ही जाएगा, क्योंकि हमें हमें कॉम्बिनेशन बोला गया है। तो इनमें जो करंट जाएगा वो आई ही जाएगा। हाउएवर दोनों में अलग अलग करंट जाएगा, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन में 0.2 एम्पियर करंट जाएगा, तो वी होता है आई इंटू आर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.82, ये होगा 0.8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस थी 16 ओम के क्रॉस, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8। तो हम लिख सकते हैं 16 ओम रेजिस्टर, तो 16 ओम resistor will have more potential difference, that is 3.2 volt, और potential difference होती है across its ends compared to parallel combination of 8 ohms of 8 ohm resistors, और वो कितनी है 0.8 वोल्ट। ओके, और रीजन ये है कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से जो इनका जो शेयर है पोटेंशियल डिफरेंस का वो भी ज़्यादा रहता है। तो सीरीज सर्किट में इसमें जो हमने यूज़ किया है, सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो पैरेलल सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी ही होगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा शेयर जो होगा वो, सॉरी, जितनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा शेयर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का उन रेजिस्टर्स के लिए। So do like, share and subscribe. Thank you for watching.